نئے عہد نامے میں مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ سے 9 آیت مقدسہ تک خدا کی کلام پاک میں لکھا ہے، پھر اس نے یہ تفصیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد کھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے تو بھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خداوند کی کلام کی پڑھے سنے قبول کیے جائے تو خداوند کی برکت ہو۔ خدا یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، اور آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ ذرا تلاوت پھر سے میرے سامنے کرتے ہیں۔ اور رات کا نیا سال شروع ہو گیا، نئے سال کو شروع ہوئے ابھی 12 بجے سے، رات 12 بجے سے ابھی صبح 10 بجے 1 بج گئے، اس کا مطلب ہے کہ 13 گھنٹے نئے سال کو شروع ہو گیا۔ اور آپ سب کو بڑی مبارک ہو کہ آج تک آپ سب زندوں کی زمین پر زندہ ہیں۔ بہت سے لوگ مر گئے، پچھلے سال میں ہمارے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ آسمانوں پر چلے گئے، اور خدا نے ہمیں آج تک زندوں کی زمین پر زندہ رکھا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں گے۔ خدا تیرا شکر، تو نے آج تک ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا ہے، تو نے آج کا دن ہمیں دیکھنے کے لیے خدا یہ فضل بخشا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں بیماریوں سے شفا دی ہے، لا علاج بیماریوں کا علاج کیا ہے، تو رب العالمین ہے، تو خداؤں کا خدا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ہم زندہ ہیں تو محنت کرتے ہیں سبوں کی ضرورت کے مطابق اپنے کلام کو نازل فرمانے کرتے ہیں، سارے ماحول پر تیرا کنٹرول پر تیرا قبضہ ہے، شفا ہونے کے لیے تیار کر اور بیان کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے روح قدس کے وسیلے سے ہماری مدد کر تاکہ ہم نیک باتوں کو سیکھ سکیں، یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے، آمین۔ دنیا میں نیا سال بہت سی قومیں مناتی ہیں، جو سب سے قدیم کیلنڈر ہے وہ فرعونی کیلنڈر ہے، وہ اس کے مطابق اپنے سال کو شروع کرتے ہیں، اور پھر ایک یہودی کیلنڈر ہے، یہ 18 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ یہودیوں کا نیا سال 18 ستمبر کو ہوتا ہے، اور یہ سال ان کا جب شروع ہوتا ہے ستمبر میں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے 430 سالوں کے بعد ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لایا، اس سال کو، اس دن کو سال شروع کرتے ہیں۔ یہ سال ان کی رہائی آزادی سے شروع ہوتا ہے، فضا کی عید سے شروع ہوتا ہے، اور چائنیز اپنے سال کو 25 جنوری کو شروع کرتے ہیں۔ یہودی یاد رکھیے 18 ستمبر کو، اور چائنیز اپنے سال کو 25 جنوری سے شروع کرتے ہیں۔ اور اسلامی دنیا میں
फर्स्ट पहली मुहर्रम को साल शुरू होता है। इसका मतलब है हर कौम का एक साल है, एक दिन है जब वो अपना साल शुरू करते हैं। और सारे साल जब शुरू होते हैं तो आमतौर पर ये मौसम बहार होता है उनके लिए। मौसम बहार में साल शुरू होते हैं। तो इस साल रात को हमने शुरू किया है और ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दिन है। इसी साल को जो मसीह मनाते हैं ये 1 जनवरी को शुरू होता है। और इस साल इस दिन सारी दुनिया का कारोबार इस कैलेंडर के मुताबिक चलता है। और यीशु मसीह ऐसी हस्ती है जिससे जमाने शुरू होते हैं। उस जमानों का खुदा है, उस जमानों को शुरू करने वाला है। जो तारीख शुरू होती है जो यीशु से पहले है उसे कब्र मसीह कहते हैं। जो यीशु के बाद में है उसे बाद मसीह कहते हैं। याद रखें, जमानों का खुदा मेरा यीशु है। तो जमानों का खुदा है, जमानों को शुरू करने वाला, और उसी की तरफ देखकर पूरी दुनिया अपने साल को मुतरब करती है। पूरी दुनिया का निजाम उसी के मुताबिक चलता है। दुनिया की फाइनेंशियल ईयर भी उसी के साथ शुरू होता है। दुनिया में उसी के साथ सारे काम शुरू किए जाते हैं। कलाम मुक़द्दस में इस बात को जानते हैं कि कल रात से हमने साल शुरू कर दिया है। पिछला साल जो गुजरा है उस साल में मैंने पहले बयान किया, हमें बहुत से तकलीफों में से गुजरना पड़ा है। उससे पिछले साल लाखों लोग मर गए। अंदाजा है कि दुनिया में 60-70 लाख लोग मरे। अंदाजा है कि पाकिस्तान में 30-35-40 हजार लोग मरे। और मैंने आप सबको एक मुबारक दी थी, नए साल की, और मैंने इस बात की मुबारक दी थी कि आपको खुदा ने एक नया साल दिया, एक नया अपनी जिंदगी में साल दिया। और खुदा ने हम पर रहम किया है, फजल किया है, कर्ज किया है। हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं। ये नया साल हमारे लिए, मेरा ईमान है कि बहुत सी बरकतें लेकर आएगा। बहुत सी बरकतें हमने पिछले साल में हासिल की हैं, और बहुत सी बरकतें खुदा आने वाले साल में जो हमने शुरू कर दिया उसमें हमें देखें। यहाँ पर जो हवाला हमने सुना है, यहाँ पर तमसील है अंजीर के दरख्त। यीशु जब तालीम देता है तो अक्सर वो तमसीलों में बातें करता है, और आमतौर पर ये बातें लोगों की समझ आ जाती है। यीशु की जुबान बड़ी सादा है, मिसालों से बात करता है। और जब हमने भी कोई बात किसी को समझानी हो, हम भी कोशिश करते हैं कि मिसाल के साथ बात करें। यीशु भी तमसीलों में बात करता है, तमसीलों में तालीम देता है। कलाम मुक़द्दस में ये तमसील जब शुरू होती है तो कलाम में लिखा कि पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त था। अंजीर के दरख्त के साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है। जब कायनात बनी, खुदा ने आदम और हवा को बनाया, तो जब पैदाइश की किताब के 3 बाब में पता चलता है, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उन्हें महसूस हुआ कि हम नंगे हैं। और जो पहला इंसान के नंग ढांपने के लिए चीज इस्तेमाल की गई वो अंजीर के पत्ते थे। पढ़ लीजिएगा कलाम मुक़द्दस में आदम और हवा ने कहा कि हम तो नंगे हैं, और नंगे अपना नंग ढांपने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए उन्होंने अंजीर के पत्ते इस्तेमाल किए। अंजीर अपने बदनों पर बांधी और गुनाह को ढांप दिया। और फिर अंजीर आमतौर पर 3 साल के बाद फल देता है, अंजीर का दरख्त। और शरीयत के मुताबिक खुदा ने लोगों को हुक्म दिया था, अपने लोगों को, बनी इसराइल को, कि 3 साल तक तुम इसका फल ना खाना, इसे नामख्तूनों की तरह समझना, इसे नापाक समझना और इसके पास नहीं जाना। और इसका जिक्र हमें पुराने अहद में मिलता है। और
कलाम मुकद्दस में से हम सीखते हैं कि यीशु की जिंदगी में अंजीर भी बड़ा काम करता था। यीशु एक दिन अंजीर ढूंढने के लिए गया, मुकद्दस मरकज़ से 11वें बाब में और मुकद्दस में 32 से 21वें बाब में बयान करते हैं इस वाक़े को कि अंजीर के दरख्त में यीशु फल ढूंढने जाता है, लेकिन फल नहीं उसमें होता। और यीशु अंजीर के दरख्त को लानत करता है, उसे हुक्म देता है वो सूख जा। और कलाम में लिखा है, मुकद्दस मत्ती इस बात को बयान करते हैं कि उसी वक्त अंजीर सूख गया, उसी वक्त अंजीर खत्म हो गया। कलाम मुकद्दस में इस वाक़े को मुकद्दस मत्ती के 21वें बाब की 19वीं आयत में लिखा। और राह के किनारे एक अंजीर का दरख्त था, देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाया। उससे कहा, आइंदा तू कभी फल न देगा। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। यीशु और ये बात करते हैं कि वो तो सब चीजें जानता था और अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने गया। असल में यीशु अंजीर के दरख्त में फल इसलिए ढूंढने गया था कि वो बताना चाहता था कि मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ और मेरे इख्तियार में है और मैं जिसे चाहता हूँ वो सूख जाता है। यीशु जैसे ही अंजीर के दरख्त की तो हाथ करके उसे कहता सूख जा, तो वो सूख जाता है। यीशु दुनिया को बताना चाहता है कि सारा इख्तियार मेरे पास है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे है। यीशु अपने इख्तियार को ज़ाहिर करता है। यीशु जब पानी पर चलता है, यीशु इस बात का बयान करता है, मुझे पानियों पर भी इख्तियार है। यीशु जब अंजीर के दरख्त को सूखने के लिए कहता है, वो सूख जाता है। यीशु इस बात को बयान करता है कि अंजीर के दरख्त भी मेरी बात मानते हैं और अगर कोई बात नहीं मानता तो वो हम नहीं मानते। हम कई दफा इनकार कर देते हैं, कई दफा खुदा की हस्ती का इनकार कर देते हैं, कई दफा हम वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। और कलाम मुकद्दस में इस बात को बयान किया गया कि एक अंजीर का दरख्त है और उसमें कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो फल ढूंढने जाता है और फल नहीं पाता। उसने पाकिस्तान में, और पाकिस्तान है क्या? वहाँ की जगह कलाम में उस बात को बयान किया गया और फिर उसने ये तफसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। अपने पाकिस्तान में अंजीरों का बाग नहीं है ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का मतलब है वहाँ जो बाग है वो अंगूरों का है। अंगूर को पाकिस्तान कहते हैं, अंगूर के दरख्तों को, अंगूर के बाग को पाकिस्तान कहते हैं। और वो बाग अंगूरों का है, लेकिन दरख्त के अंदर अंजीर का लगा हुआ है। वो अंजीर के दरख्त के पास जाता है पाकिस्तान और उसमें से फल ढूंढता है। कलाम मुकद्दस में इस बात को बयान किया गया, उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इसका मतलब है कि वो दरख्त जिसकी उम्र 4 साल, 4 साल में थी, उसमें फल नहीं है। और फल ढूंढने जो आया है वो उसका मालिक है, वो उसका मालिक है, खालिक है, वो उसको लगाने वाला है, उसको बड़ा करने वाला है और उसमें फल नहीं पाता। कलाम में उसने इस बात को बयान किया। उसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसका मतलब है 3 साल से, इसका मतलब है इस दरख्त को लगे 6 साल हो गए। 3 साल शरीर के मुताबिक उन्हें उस दरख्त में फल नहीं लगता था, लगता था तो वही तोड़ते थे। और 3 साल से वो फल ढूंढने के लिए आता है, 3 साल से फल तलाश कर रहा है। इसका मतलब है 3 साल का दरख्त और 3 साल फल ढूंढ रहा है, वो 6 साल का दरख्त हो गया। और फिर मालिक उसमें से फल ढूंढने के लिए आता है और नहीं पाता। और आज के कलाम में से आपको बताना चाहता हूँ, खुदा मेरी और आपकी भी जिंदगी में, मेरी और आपकी जिंदगी में भी फल ढूंढने के लिए आता है। हम देखता है कि हमारे अंदर फल है या नहीं, रूह के फल है या नहीं, हम सच बोलते हैं कि नहीं, हम रिश्वत लेते हैं कि नहीं, हम झूठ बोलते हैं कि नहीं, हम फ्रॉडी हैं कि
खुदा हर एक को जानता है। वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। वो हम में से भी ये सब कुछ ढूंढता है, हमारी जिंदगियों से सब कुछ वो ढूंढता है, उसे नहीं मिलता। वो हमें साथ देता है। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, और कई 70 साल के भी बैठे हैं। खुदा आपकी जिंदगी में भी फल ढूंढता है। आप कहां तक तब्दील हुए हैं। और हमारा मुल्क, हमारी कौम दुनिया में कोई अच्छी शोहरत नहीं रखती। हम दुनिया में कोई अच्छी शोहरत नहीं रखते। हमारा निजाम, अदालती निजाम दुनिया में 127वें नंबर पर है। हमारी हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है। मुझे बाहर के मुल्कों में जाकर इस बात का एहसास होता है कि दूसरे लोगों को इतना चेक नहीं करते जितना हमको करते हैं। जितनी हम में बुराइयां पाई जाती हैं वो उन्हें देखते हैं। और हमारी जिंदगी में भी हल ढूंढने के लिए आता है। बागबान ने कहा, देख मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढ आता हूँ और नहीं पाता। उसे कहता है कि मैं फल इसमें पाता, मैं ढूंढता हूँ। याद रखिए, फल लगे तो वो दूर से ही नजर आ जाता है। बात करने वाली है। वो फल ढूंढने आता है, फल ढूंढ रहा है, फल पत्तों के अंदर नहीं है। फल किसी दरख्त को लगे तो वो दूर से नजर आता है, ढूंढना नहीं पड़ता। अगर आपकी जिंदगी में खुदा काम करता है तो फिर से ढूंढना नहीं पड़ता। लोग वैसे आपको देख के कहते हैं कि ये बंदा सच्चा है, इसके काम अच्छे हैं। हमारे कामों से हम जाने जाते हैं, हमारे कामों से हम पहचाने जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, वो फल ढूंढने आया है। पाकिस्तान का वो इलाका है, अंगूरों का बाग है, अंगूरों की बेलें लगी हुई है और फल ढूंढने उसमें जीत का है। और दरख्त में याद रखे कि फल नहीं है। पत्तों के अंदर भी वो ढूंढता है कि शाम को लोग के लगे हो, अंदर भी कोई नहीं है। और मैं अपनी बात जो करने वाला हूँ, खुदा हमारे अंदरों को भी जानता है। हम जो काम छुप कर करते हैं खुदा उसे भी जानता है। मत समझे कि खुदा हमें नहीं जानता। जितने आप बैठे हैं, जितनी आप बैठी हैं, खुदा आपको जानता है। वो रब्बुल आलमीन ने मेराज को बयान कर रहा था कि दुनिया में सबसे अहम काम आजकल क्या है, कंप्यूटर है। छोटा सा कंप्यूटर मेरे हाथ में भी है, मोबाइल के तौर पर, जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। और हमारे घर में भी कंप्यूटर है और उस पर लोग बड़े बड़े अपने काम करते हैं। बड़ी उसकी मेमोरी होती है, बहुत बड़ी बड़ी मेमोरी के कंप्यूटर्स होते हैं और उसमें बटन दबाए तो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन निकल आती है। इसका मतलब है दुनिया की आबादी 7.5-8 अरब है। दुनिया की आबादी 7.5 या 8 अरब है और मेरा खुदा 7.5 और 8 अरब के हर बंदे को जानता है, हर इंसान को जानता है। जब नरमा के लोगों ने गुनाह किया तो खुदा कहते तेरे गुनाह मुझ तक पहुंच। खुदा तक हमारी एक एक हरकत पहुंचती है। खुदा हमें जानता है, हमारे दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा, वो हमारी शरीर से वाकिफ है। उसके सामने हमारी तस्वीर है। ये मत समझे दुनिया में कंप्यूटर 7.5 करोड़ लोगों को 7.5 अरब लोगों को जानता है, लेकिन खुदा कंप्यूटर बनाने वाले से कहीं तेज है। जिसने कंप्यूटर बनाया खुदा ने उसको बनाया। कंप्यूटर बनाने वाले इंजीनियर्स को खुदा ने बनाया था और खुदा उससे कहीं आगे होगा। उसकी सोच उससे कहीं बढ़कर होगी। और कलाम में उसमें लिखा कि वो फल ढूंढने में आया, फल ढूंढने के लिए बाग में आया, लेकिन वो फल नहीं पाता। और वो कहते इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। खुदा से कहते इसे काट डाल। और याद रखें कि ये बड़ी खतरनाक बात होती है। जब अंजीर को काटा जाता है तो उसे खत्म करने के लिए बाद में जलाया जाता है। और जिनको खुदा की हजूरी में गुनाह करते हैं, जो खुदा की हजूरी में साथ नहीं चलते, खुदा की हजूरी में अपनी जिंदगी नहीं गुजारते, उनका अंजाम जो है वो हलाकत है, जहन्नम है, कहन्नम, वादी जहाँ पर
हर वक्त आग जलती रहती थी। इसका जिक्र यहाँ किया जाता है। कहते से काट डाल, और खुदा के कलाम में इस बात को बयान किया गया कि ये जमीन को क्यों रोके रहे, जमीन को क्यों रोके रहे। ये जमीन किसकी है? खुदा की। ये दर्द किसके हैं? खुदा के। खुदा कहते हैं इसे काट डाल और इसे जला दे। जमीन को क्यों रोके रहे? खुदा के कलाम में इस बात को बयान किया गया है कि खुदा नहीं चाहता कि किसी की हलाकत। तो 3 साल वो बर्दाश्त कर रहा है, 6 साल वो बर्दाश्त कर रहा है, 6 साल वो देख रहा है, 6 साल वो फल तलाश करता है, 3 साल फल तलाश करता है लेकिन नहीं मिलता। तो खुदा कहते हैं इसे काट डाल, इसे खत्म कर दे। और आगे वो क्या जवाब देता है? कलाम में इस बात को बयान करता है। उसने जो में कहा, उससे कहा, ऐ खुदा इस साल तो और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके